Good morning, students. Myself, Rajiv Verma, is going to start the numericals of chapter number 2. First of all, I am going to solve the NCERT exercise. Now, starting from question number 1, two charges of 5 into 10 to the power minus 8 coulomb and minus 3 into 10 to the power minus 8 coulomb are located 16 centimeter apart. At what point on the line joining the two charges is the electrostatic potential 0? Take the potential at infinity to be 0. In this question, we are having two charges and the magnitudes are 5 10 to the power minus 8 coulomb and second charge is Q2 minus 3 10 to the power minus 8 coulomb. These two charges are kept a particular distance apart. Means suppose if r be the distance between these two charges, then it is 16 centimeter, means 0.16 meter. Then as per the question, consider this is first charge, this one is the second charge, and AB be the line joining the charges, and the question is at what point on the line joining the charges the potential becomes 0. So first of all, consider suppose at this point the potential is 0, यानी इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन पर यहाँ पोटेंशियल 0 हमने पहले मान लिया. एंड द लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट इज फ्रॉम A it is x, and as the question is the separation between these two charges is 16 centimeters, is 0.16 meter, then the remaining distance will be 0.16 minus x. Now we can calculate the potential. और एक चीज और गिवन है कि potential due to at this point becomes 0. मतलब potential due to the first charge at this point and the potential due to the second charge at this point is equal to 0. Where we can calculate the potential V1, which is 1 by 4 pi epsilon naught Q1 upon x, V2 1 by 4 pi epsilon naught Q2 upon 0.16 minus x. So therefore V1 plus V2 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught is common, Q1 upon x plus Q2 upon 0.16 minus x, and according to the question it is 0, which implies Q1 upon x plus Q2 upon 0.16 minus x is 0. Now we can put the values of Q1 and Q2. Q1 की जो वैल्यू है वो है 5 इंटू 10 to the power minus 8 upon x प्लस एंड द चार्ज इज नेगेटिव, तो ये साइन हो गया माइनस का, 3 इंटू 10 to the power minus 8 अपॉन 0.16 minus x, and this is equal to 0. Now after simplification हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 5 10 to the power minus 8 upon x is equal to 3 into 10 to the power minus 8 upon 0.16 minus x. 10 to the power minus 8 is cancelling out, or after cross multiplication we'll get 3x is equal to 0.80 minus 5x, और इधर आ जाएगा तो 8x is equal to 0.80, then x will become 0.10 meter, और जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे then it will be 100 centimeter. This is the first possibility that the charge that the potential on the line joining the 2 point become 0. एक और possibility संभव है कि suppose this point lies outward, यानी इसी लाइन को ज्वाइन करने पे ये पॉइंट कहीं बाहर अगर लाई करता हो, तो उसके लिए भी हम यही करेंगे. मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ कि अगर हम सेकंड केस की कंसिडर करते हैं, सेकंड पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, तो ये दोनों चार्जेस तो Q1 Q2 यहीं पर हैं, ये दो पॉइंट A और B हैं, इनके सेपरेशन 0.16 मीटर ही है.
अब अगर हम ये कंसिडर कर लें कि सपोज ये पॉइंट जो है वो हमने माना था ये अगर यहाँ हो तो, और ये किसी भी एक चार्ज से, सपोज ये फर्स्ट चार्ज से x डिस्टेंस पर ही है जैसे यहाँ पर था, तो ये जो डिस्टेंस होगी सेकंड चार्ज से इस पॉइंट का जो गैप होगा ये हो जाएगा x माइनस 0.16। और बिल्कुल इसी तरह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द फर्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द सेकंड निकाल लेंगे और उसे सिंप्लीफाई करेंगे, देन यू विल गेट अगेन वैल्यू दैट विल बी द सेकंड पॉसिबिलिटी। इसी तरह के तरीके से आप सेकंड वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 is completed. Question number 2 is a regular hexagon of side 10 cm has charge 5 microcoulomb at each of the vertices. Calculate the potential at the center of the hexagon. यानी इस बार हेक्सागोन मतलब हैविंग 6 साइड्स, एक रेगुलर हेक्सागन दिया गया है 1 2 3 4 5 6 साइड हैं। इन पॉइंट्स का मैं नेम मान लेता हूं ABCDEF। नाउ द हेक्सागोन इज रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। रेगुलर हेक्सागन का मतलब हुआ कि सारी साइड 10 सेंटीमीटर की होंगी और इनकी अपोजिट वर्टेक्स को इंटरसेक्ट करने वाला जो पॉइंट होगा दैट विल मेक द इक्विलेटरल ट्राइंगल विद द साइड्स, यानी ये सभी साइड 10-10 सेंटीमीटर की ये वाले गैप सारे हो जाएंगे अगर ये रेगुलर हेक्सागोन है तो। और इस पॉइंट का नाम ओ रखा हुआ है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है इसमें, हमें यहाँ पर ये कहा है कि अगर 5 माइक्रोकुलाम इसके सभी वर्टेक्सेस पर रखा हुआ हो, 5 माइक्रोकुलाम इज केप्ट ऑन ऑल द वर्टेक्सेस ऑफ दिस हेक्सागोन, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर, सेंटर पर पोटेंशियल निकालना है। तो सेंटर पर पोटेंशियल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एट द सेंटर, इसे मान लेते हैं V1। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एट द सेंटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एट द सेंटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एट द सेंटर, यानी सभी चार्जेस से सेंटर पर पोटेंशियल निकालेंगे। और ये सभी पोटेंशियल्स की वैल्यू जो है V1, V2, V3, V4 और V5 और V6, ये सब क्या आएंगी, ये सभी वैल्यूज इक्वल आएंगी V के। क्यों, क्योंकि सेपरेशन सेम है, चार्जेस सेम है और 1/4πε0 की वैल्यू सेम होती है। तो अगर हम नेट पोटेंशियल की बात करें, नेट पोटेंशियल एट O, अगर O पर नेट पोटेंशियल की बात करते हैं तो क्या होगा, नेट पोटेंशियल होगा इन सब का सम या 6V कर दें, नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू 6V और 6V की वैल्यू है 1/4πε0। नेट पोटेंशियल एट O इज इक्वल टू 6V इज इक्वल टू 6 × 1/4πε0 और ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर चार्ज एंड R। तो ये 6 9 × 10⁻⁹ इसकी वैल्यू हो गई 1/4πε0 की। और चार्ज दे रखा है 5 माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻6 कूलाम और डिवाइडेड बाई R की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर मतलब 0.10 मीटर। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर आएगा 2.7 × 10⁻6 वोल्ट। वोल्ट इज द यूनिट ऑफ द पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 2 इज ओवर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन में तो सिर्फ इक्विपोटेंशियल सरफेस पूछी गई है, थर्ड क्वेश्चन को भी मैं बता देता हूँ कि 2 चार्जेस ऑफ +2 माइक्रोकुलाम एंड -2 आर प्लेस एट A and B 6 सेंटीमीटर अपार्ट। यानी अगर मैं पहले थर्ड क्वेश्चन की बात करूँ तो इसमें 2 चार्ज दे रखे हैं और उनके मैग्नीट्यूड हैं +2 माइक्रोकुलाम, A and B इज़ -2 माइक्रोकुलाम। ये जो उनका बीच का जो गैप दे रखा है वो दे रखा है 6 सेंटीमीटर्स, इस तरह से रखे गए हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस आइडेंटिफाई करनी है। जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी
due to these two equal and opposite charges, that will be a plane normal to AB, यानी AB के परपेंडिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, और इट विल पास थ्रू द सेंटर O ऑफ दीज टू चार्जेस। यानी हमें आइडेंटिफाई करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस को, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, इन दोनों चार्जेस के बीच में परपेंडिकुलर प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा ड्यू टू दीज टू चार्जेस। इसका एक और पॉइंट पूछा गया है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस। डायरेक्शन क्या होगी, जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होगी दैट विल बी नॉर्मल टू द प्लेन इन द डायरेक्शन AB। सेकंड पॉइंट में हो जाएगा नॉर्मल इन द डायरेक्शन AB, दैट इज AB का मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज, फोर्थ क्वेश्चन में कहा है स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर हमने यहाँ बना लिया, स्फेरिकल कंडक्टर है ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर दी गई है, एंड हैज अ चार्ज ऑफ 1.6 × 10⁻⁷ कूलम। इसके ऊपर जो चार्ज है वो दिया हुआ है, मैंने मान लिया Q है, और Q की वैल्यू दे रखी है 1.6 × 10⁻⁷ कूलम्स डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला पार्ट पूछा है इनसाइड द स्फीयर, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी ये पूछिए। तो एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0, देन आंसर is again 0 here also. It is the property of a conductor कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। तो पहला पार्ट हमारा खत्म हो गया। सेकंड पार्ट इज जस्ट आउटसाइड द सरफेस। अगर हम जस्ट आउटसाइड द सरफेस की बात करते हैं तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R क्या होगा, स्मॉल r रिप्रेजेंट करता है उस पॉइंट को वेयर वी शुड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, और r रेडियस ऑफ द स्फीयर को रिप्रेजेंट करती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा 1/4πε0 Q/r² के इक्वल होगा। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, चार्ज इसमें दिया है 1.6 × 10⁻⁷, और रेडियस है 12 सेंटीमीटर मतलब 0.12 मीटर स्क्वायर, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी कैन गेट द आंसर, इट विल बी 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये आ गई है। अब इसका एक थर्ड पार्ट भी पूछा गया है, एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर, यानी R की वैल्यू दे रखी है 18 सेंटीमीटर, वेदर कैपिटल R इज 12 सेंटीमीटर इज गिवन, पर हमें वो फाइंड आउट करना है। तो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 1/4πε0 अगेन Q/r²। यहाँ पर तो कैपिटल R स्मॉल r सिमिलर थे, स्मॉल r लिखते या कैपिटल R, ये दोनों बराबर थे क्योंकि सरफेस पे कैलकुलेट करना था। यहाँ पर बाहर कैलकुलेट करना है क्योंकि 12 सेंटीमीटर का स्फीयर है और 18 सेंटीमीटर पर हमें वो निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ इंटू चार्ज इज 1.6 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई R, इट इज 18.18 स्क्वायर, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन गेट 4.44 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, यानी इस बार पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है, बीच में क्या फिल है, एयर इज फिल्ड, एंड द कैपेसिटेंस ऑफ 8 pf, यानी इसका जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस दे रखा है 8 pf पिकोफैराडे। ओके, ओके, और इसमें कहा है कि इफ द मीडियम बिटवीन दिस इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक of relative constant K of 6, then what will be the capacitance, the distance between the plate is reduced to half, यानी इनके बीच का जो गैप है उसको क्या कर दिया जाएगा, अगर हाफ कर दिया जाए, the space between them is filled with the dielectric medium of this। तो पहले तो हम करते हैं कि अगर एयर बीच में फील्ड है तो कैपेसिटेंस का जो फार्मूला होता है, वी नो फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इट इज ε0 A/d, ये कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है, और ये हमें दे रखा है 8 pf। अब हमें क्या करना है, अगर इसका गैप आधा कर दिया जाए, यानी कि न्यू कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, तो क्या क्या चेंज किया गया, एरिया विल बी सेम, गैप क्या कर दिया, सपोज d' कर दिया, d' को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि d/2 कर दिया हाफ एज पर द क्वेश्चन,
और इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया। डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर फिल कर देते हैं तो कैपेसिटेंस विल बिकम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम, यानी ये के टाइम्स हो जाता है। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो विल गेट के 2k एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ओके, नाउ आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, ये हो गया 2k और एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी की वैल्यू क्या है, ओरिजिनल कैपेसिटी, इनिशियल कैपेसिटी, तो 2k की वैल्यू है 6 और इनिशियल कैपेसिटी है 8 pf, तो ये हो गया 96 pf, ये हो गई इसकी वैल्यू। और मैं इसको इस टर्म को भी डिफाइन कर दूँ, क्वेश्चन में दिया हुई है कि 1 पिको फैराडे इज इक्वल टू 10⁻⁻2 फैराडे के होते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज 3 कैपेसिटर्स, ईच ऑफ कैपेसिटी हैज 9 pf पिको फैराडे। पिको फैराडे मतलब माइक्रो फैराडे भी कह सकते हैं इसको। 9 पिको फैराडे आर कनेक्टेड इन सीरीज। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, यानी कि हमें 3 कैपेसिटेंस दे रखे हैं C1 C2 C3 और तीनों की जो कैपेसिटी है वो है 9 पिको फैराडे। मैंने बता दिया था 1 पिको फैराडे 10⁻⁻12 फैराडे के इक्वल होता है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना कहा है कि अगर इन्हें सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए, सीरीज कॉम्बिनेशन में फार्मूला होता है 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। क्वेश्चन में कहा है टोटल कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, तो 1/C1 इज 9, 1/9 प्लस 1/9, ये हो जाएगा 3/9 यानी 1/3। तो CS की वैल्यू आ जाएगी 3 पिको फैराडे। तो ये हो जाएगी इक्विवेलेंट कैपेसिटी। फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में कहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर व्हेन द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड विद अ बैटरी ऑफ वन विद अ सोर्स ऑफ 120 वोल्ट सप्लाई, यानी 120 वोल्ट सप्लाई से अगर इस कॉम्बिनेशन को कनेक्ट कर दिया जाता है तो ये कह रहा है व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच, यानी सभी में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो हमने ये पढ़ा है कि अगर 3 कंपोनेंट्स इस तरह से कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं किसी एक पोटेंशियल V से जो कि 120 दे रखा है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज अलग अलग होती है, लेकिन कब, जब कैपेसिटेंस अलग अलग हो। अब यहाँ तीनों की जो कैपेसिटेंस है वो सेम है, वो 3 पिको फैराडे 9 पिको फैराडे हैं, तो पोटेंशियल भी तीनों में सेम होगा। इसका मतलब हुआ जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच होगा दैट विल बी V/3, यानी कि 120/3, यानी इट विल बी 40 वोल्ट फॉर ईच, यानी सभी के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्लेट का वो 40 होगा। ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट क्यों हुआ, क्योंकि कैपेसिटेंस इक्वल दिया हुआ था। नाउ कमिंग टू द 7th क्वेश्चन। 3 कैपेसिटर्स, इस बार कैपेसिटेंस अलग अलग दिए हैं ऑफ 2 pf 3 pf and 4 pf। 3 कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटेंस इज दिस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो इसके ए पार्ट में कहा है व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो हमें पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटेंस हैं वो तीनों का सम होते हैं, यानी कि 2 + 3 + 4 9 पिको फैराडे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड। सेकंड पार्ट में आते हैं, इसमें कहा डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच। इस बार हमें Q1 Q2 Q3 कैलकुलेट करने हैं। इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड विद अ बैटरी ऑफ 100 वोल्ट, अगर इसको 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए तो हमें Q1 Q2 Q3। तो आप ये देखो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये वाला कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हमने इसको 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है तो सभी के कैपेसिटेंस C1 C2 C3 हैं, लेकिन सभी में वैल्यू ऑफ पोटेंशियल जो है वो 100 वोल्ट ही होगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल नहीं चेंज होते, तो V की वैल्यू तो सेम रहेगी 100। अब हमें चार्ज ऑन द फर्स्ट कैलकुलेट करना है, ये हो जाएगा C1V। कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट इज 2 × 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हो गया 2 × 10⁻⁻10 कूलाम। ये आंसर आ गया। इसी तरह से हम Q2 को कैलकुलेट करेंगे C2V। मैंने बता दिया आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से पोटेंशियल सेम है सभी का, कैपेसिटी अलग अलग है। तो 3 × 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हो गया 3 × 10⁻⁻10 कूलाम। सिमिलरली Q3 में भी कैलकुलेटेड एज C3V, तो ये हो गया
थर्ड है 4 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 100 इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। इस तरह से हमारे तीनों आंसर आ गए, चार्जेस हमने कैलकुलेट कर दिए। ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन नंबर 8, in a parallel plate capacitor with air between the plates, each plate has an area of 6 into 10⁻⁻3, यानी प्लेट एरिया दे रखा है 6 इंटू 10⁻⁻3 मीटर स्क्वायर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स दे रखा है 3 mm। इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁻3 m। तो कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। पहले तो हमें कैपेसिटेंस ही निकालना है, तो कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, जिसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 होती है। ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 6 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाई डी। डी इज 3 इंटू 10⁻3। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, दैन इट विल बी 1.8 10⁻11 फैराडे। और ये हम इसे अगर 18 कर दें तो ये 12 हो जाएगा पावर माइनस के, और ये हो जाए तो ये हो जाएगा 18 पिको फैराडे। 18 पिको फैराडे। इसमें एक चीज़ और पूछी गई है कि इफ़ द कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट, अगर 100 वोल्ट सप्लाई से इस कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया जाए तो व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो चार्ज क्या होगा, तो C इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू CV। इस फार्मूला को लगा देते हैं, Q इज इक्वल टू CV। C की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है 18 इंटू 1.8 इंटू 10⁻11, ये वाली वैल्यू लेते हैं क्योंकि ये तो पिको फैराडे में है, और वोल्टेज है 100, तो ये हो गया 1.8 इंटू 10⁻9 कूलम। तो ये हो जाएगा चार्ज ऑन ईच प्लेट, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होंगे। तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो कंप्लीटेड। कितने मिनट हुआ? अगर हम 9th क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो 8th से रिलेटेड है। एंड इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज गिवन दैट व्हाट वुड हैपन इफ इन द कैपेसिटर गिवन इन क्वेश्चन नंबर 8 3 mm थिक माइका शीट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 वर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट। यानी इन क्वेश्चन नंबर 8 जो हमने कैपेसिटर पढ़ा था, अगर उसके बीच में एक K इज इक्वल टू 6 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की 3 mm की एक माइका सीट यानी कि डाइलेक्ट्रिक्स अगर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, तो इसमें पूछा है फर्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन में कहा है कि तो व्हाट विल हैपन। फर्स्ट पार्ट इज व्हाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड। अगर वोल्टेज सप्लाई कनेक्टेड रहे तो 8th क्वेश्चन से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली हैं, कैपेसिटेंस 1.8 10⁻11 हमने 8th क्वेश्चन में कैलकुलेट कर लिया था। चार्ज हमने 1.8 10⁻9 कैलकुलेट कर लिया था। के इस बार दिया है 6। तो दीज आर द इंफॉर्मेशंस विच वी हैव ऑब्टेन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। नाउ मूविंग टुवर्ड द 9, द फर्स्ट पार्ट इज व्हेन द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड। अगर वोल्टेज सप्लाई कनेक्टेड हो तो क्या हो जाएगा, द कैपेसिटेंस यानी कि द न्यू कैपेसिटेंस इंक्रीज बाई K टाइम्स, यानी ये K C के बराबर हो जाएगा। K यहाँ पर 6 दिया है और C 1.8 10⁻11 हमने कैलकुलेट किया है, तो ये हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 108 इंटू 10⁻12 फैराडे या 108 पिको फैराडे। ये आंसर आ जाएगा पहला पार्ट, जब वोल्टेज सप्लाई कनेक्टेड रहे। तो दूसरी चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है चार्ज हो जाएगा C डैश V के इक्वल। C डैश हमने निकाला है 108 10⁻12 और V है 100, तो ये हो गया 108 इंटू 10⁻10 या 1.08 इंटू 10⁻8 कूलम्स। तो ये हुआ कि जब सप्लाई कनेक्टेड है। अगर सप्लाई को डिसकनेक्ट कर दिया जाए, सेकंड पार्ट में आफ्टर द सप्लाई वाज डिसकनेक्टेड, तो जब सप्लाई डिसकनेक्टेड कर दी जाएगी तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर रिमेन सेम। यानी जो चार्ज है डिसकनेक्ट कर देने पर, कैपेसिटर चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, तो चार्ज विल रिमेन सेम, चार्ज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इट विल अनअफेक्टेड। द कैपेसिटेंस इंक्रीजेज, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इट विल अगेन इंक्रीज बाई K टाइम्स,
यानी कि 6 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁻11, ये 108 पिको फैराडे आ जाएगा। टू थिंग्स। अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा यानी कि V, जब सप्लाई को हटा दिया गया, सप्लाई लगाई थी तो पोटेंशियल डिफरेंस था 100 वोल्ट, जब सप्लाई हटा दी गई तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V डैश हो जाएगा, वो V/K हो जाएगा, 1/K टाइम्स हो जाएगा। यानी V था 100 और जब इसको हटा दिया तो 1/K टाइम्स हो गया, यानी इट विल बी 16.6 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नाउ 10th क्वेश्चन, a 12 picofarad capacitor is connected to 50 volt battery. Capacitance is given, it is 12 picofarad, यानी 12 into 10⁻⁻12 farad, and it is connected with a supply of 50 volts. How much electrostatic energy is stored in the capacitor? Very simple question. Energy stored in the capacitor is half CV square. So 1/2 C is given, 12 into 10⁻⁻12 into V is 50 square. After simplification, we'll get 1.5 into 10⁻⁻8 joules. This much energy will be stored by the capacitor. Now question number 11. A 600 picofarad capacitor is charged by 200 volt supply. यानी कैपेसिटर है जो 600 पिकोफैराड का है, इसको एक 200 वोल्ट सप्लाई से चार्ज किया गया। इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड कनेक्टेड टू द अनदर अनचार्ज 600 पिकोफैराड कैपेसिटर। अब इसको ये मान लेते हैं 1, दूसरे 600 पिकोफैराड कैपेसिटर से ही कनेक्ट कर दिया गया आफ्टर डिस्कनेक्टिंग, यानी कि जो सोर्स से पोटेंशियल मिल रहा था वो हो गया 0। अब इस क्वेश्चन में कहा है हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द प्रोसेस, इसमें कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस होगी। तो जब दो कैपेसिटर आपस में कनेक्ट होते हैं तो हम निकालते हैं एक टर्म दैट इज कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल होता है C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये फार्मूला है कॉमन पोटेंशियल कैलकुलेट करने का। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। C1 है 600 10⁻⁻12, V1 है 200 प्लस C2 है 600 इंटू 10⁻⁻12, V2 है 0 डिवाइडेड बाई 600 10⁻⁻12 प्लस 600 इंटू 10⁻⁻12। ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ गया हमारा 100 वोल्ट। तो V की वैल्यू आ गई। अब हम कैलकुलेट करेंगे इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड। इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ये UI हो सकता है हाफ C1 V1 स्क्वायर, क्योंकि इनिशियली तो C1 V1 फर्स्ट कैपेसिटर ही था जो V1 पोटेंशियल से चार्ज हो रहा था। इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। C1 की वैल्यू है 600 पिकोफैराड यानी कि 10⁻⁻12, V1 है 200 का स्क्वायर। इसको सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 12 इंटू 10⁻⁻6 जूल्स। तो इनिशियली तो कैपेसिटर में इतनी एनर्जी थी। अब जब हम इसको दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं तो जो फाइनल एनर्जी स्टोर्ड होगी यानी कि UF, ये हो जाएगी 1/2 C1 प्लस C2, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, इंटू V स्क्वायर। अब इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 600 प्लस 600 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 100 स्क्वायर, क्योंकि कॉमन पोटेंशियल है 100, यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल यूज़ करेंगे क्योंकि दोनों को कनेक्ट करने के बाद आ रहा है। तो इससे जो आंसर आ गया वो आ गया 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल्स। तो इनिशियली 12 10⁻⁻6 जूल एनर्जी थी, जब दोनों को कनेक्ट करा तो 6 10⁻⁻6 जूल एनर्जी बच गई। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस कितना हुआ, यहाँ पे मैं करता हूँ एनर्जी लॉस। जो एनर्जी लॉस हुआ वो इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी के हो गया, यानी 12 - 6 इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻6 joules. So this much energy is lost in this process, and the question, all the questions are completed.